ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا دورہ پاکستان، معزز مہمان کا اسلام آباد پہنچنے پر شاندار استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم کے ہمراہ خود استقبال کے لیے نورخان ایئربیس پہنچے۔ ایرانی صدر کو خوش آمدید کہا، گلدستے پیش کیے، مہمان صدر کو توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مسعود پیزشکیان آج وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف زرداری سے ملیں گے۔ عسکری قیادت سے بھی ملاقات کا امکان۔ ملاقاتوں میں پاک ایران گیس پائپ لائن، سرحدی انتظام اور زائرین سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ ایران کی جانب سے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی گئی۔ دونوں ملکوں میں باہمی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر کی پاکستان پہنچتے ہی مزار اقبال پر حاضری۔ مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ تہران سے لاہور پہنچنے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مسعود پیزشکیان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر مسعود پیزشکیان نے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات کی۔ شاندار خیر مقدم پر نواز شریف اور مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دفتر خارجہ میں پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا دو طرفہ روابط اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام، تجارت اور معاشی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ایرانی ہم منصب بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ کی ملاقات۔ علاقائی امن اور دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ خواجہ آصف کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دفاعی سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزیر دفاع کا مضبوط دفاعی تعلقات استوار کرنے کی خواہش کا اعادہ۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان سے اسلام آباد میں مذہبی سیاسی رہنماؤں کے وفد کی ملاقات۔ ایرانی صدر کا مذہبی ہم آہنگی امت مسلمہ کے اتحاد پر زور۔ وفد میں علامہ طاہر اشرفی، حافظ نعیم الرحمان، سید ساجد نقوی، مشاہد حسین سید اور دیگر شریک تھے۔ پاکستان فضائیہ نے رافیل کیسے گرائے؟ غیر ملکی میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹنگ کا فیوریٹ ٹاپک بن گیا۔ رائٹرز کی نئی رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی رات بھارتی طیارے ریڈار پر نمودار ہوئے تو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے رافیل گرانے کا حکم دیا۔ بھارتی انٹیلیجنس کی چینی PL-15 سے متعلق غلط معلومات رافیل گرنے کا سبب بنی۔ PL-15 میزائل نے 200 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنایا۔ رافیل کے پائلٹ سمجھے کہ وہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے باہر ہیں۔ 2 گھنٹے طویل لڑائی میں 110 طیارے شامل تھے۔ پاکستانی J-10C نے فضائی تاریخ کے سب سے طویل فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مظفر گڑھ کا دورہ۔ فوجی بیڑے میں جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی۔ ہیلی کاپٹرز کی فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھی بریفنگ لی۔ جوانوں سے ملے، بلند عزم و حوصلے کو سراہا۔ مشق ایریا میں ہتھیاروں کے کامیاب مظاہرے کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملتان گیرزن کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کا پاک فوج کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ قومی سلامتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے سول سوسائٹی اور تدریسی اداروں کے نمائندوں سے تبادلہ خیال کیا۔ قومی اتحاد، سول ملٹری روابط اور قومی ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ PTI نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو مستعفی ہونے کا کہہ دیا۔ ذرائع کا دعویٰ، بتایا بانی نے کہا علی امین گنڈاپور معاملات نہیں سنبھال سکتے تو مستعفی ہو جائیں۔ علیمہ خانم سیاست سے دور رہیں، میرے بیٹے پاکستان مجھ سے ملنے آنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے پاکستان آ کر احتجاج کی قیادت کریں۔ قاسم اور سلیمان کے آنے سے حکومت کی جان کیوں نکلی ہوئی ہے؟ حکومت انہیں نہیں روک سکے گی، ویزا یا نائکوپ دینا پڑے گا۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے تحریک کے لیے 5 اگست اہم ہے، 14 اگست نقطۂ عروج ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں والد اور فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکے تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے؟ اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔
सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला की बानी पीटीआई के बेटों के ट्वीट की तर्दीद। कहा बानी के बेटों ने सेंट्रल जेल अडियाला से मुतालिक मन घड़त ट्वीट किया। जेल में हेपेटाइटिस से कैदियों की हलाकत का कोई वाकया नहीं हुआ। कैदी को स्क्रीनिंग करने के बाद ही जेल में दाखिल किया जाता है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान किसी कैदी की हेपेटाइटिस से मौत नहीं हुई। बानी के बेटों के ट्वीट में मन घड़त बातें की गईं जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी के हसास इदारे पर ऐसे इल्जामात इंतशार फैलाने के मुतरादिफ हैं। तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात करवा दी गई। गवाह नैब अफसर आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने जिरा मुकम्मल कर ली। अडियाला जेल में कायम अदालत ने 2 मजीद गवाहान राबिया और सना को आइंदा समात पर तलब कर लिया। समात 6 अगस्त तक मुलतवी। चीनी कहीं महंगी तो कहीं दस्तयाब ही नहीं। कराची के शहरी कहते हैं चीनी 200 रुपए किलो में भी दस्तयाब नहीं। लाहौरियों का कहना है दुकानदार सरकारी निर्खों पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। मुल्तान में चीनी 210 से कम होकर 175 रुपए फी किलो मिलने लगी। कराची की होलसेल मार्केट में ताजरों ने चीनी की फरोख्त रोक दी। ताजरों का कहना है होलसेल में चीनी 174 रुपए किलो से तजावुज कर चुकी है। महंगी चीनी खरीद कर सरकारी निर्ख पर फरोख्त नहीं कर सकते। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की चीनी नायब वजीर खारजा से मुलाकात। एहसन इकबाल ने वजीर आजम का खैर सगाली पैगाम पहुंचाया। इक्तिसादी राहदारी फेज 2, सनती ताउन और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर गुफ्तगू। एहसन इकबाल का कहना था सीपैक फेज 2 में सनती और तकनीकी शोबे कलीदी हैसियत के हामिल होंगे। शनाख्त बदलो, भेस बदलो, मुसलमानों पर इल्जाम लगाओ, हिंदू मुस्लिम फसाद कराओ और अपनी सियासत चमकाओ। भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मोदी सरकार का नया हथकंडा बेनकाब कर दिया। ध्रुव राठी ने बताया कैसे आरएसएस के हामी हिंदुओं ने मुसलमानों की जिंदगी आजीरन कर रखी है। बजरंग दल के लीडर ने गाय ज़िबा की, इल्जाम मुसलमान पर लगाया। हिंदू लड़के ने मुसलमान आईडी से बम हमले की धमकी दी। मंदिर उड़ाने की धमकी देने वाला भी हिंदू निकला, फिर गिरफ्तार हुआ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाए। वफाकी हुकूमत का दोबारा फैसला। वजारत दाखिला का कहना है POR कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। इसके बाद कार्ड होल्डर्स का पाकिस्तान में कयाम गैर कानूनी करार दिया गया है। सवात में फितना खवारिज के खिलाफ रैलियां, कौमी परचम थामे सैकड़ों अफराद की शिरकत। शुरका का पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। शुरका का कहना था हमारी जमीन पर फितना खवारिज की कोई जगह नहीं। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मीरान शाह में पाक फौज के ताउन से कबायली अमायदीन का अहम जिरगा। मशरान अमायदीन का अमन के क़याम और फितना खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइच ने बतौर मेहमान खुसूसी जिरगे में शिरकत की। कबायली अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेजबानी में इलाकाई जिरगों का आगाज। वजीर आला हाउस में पहला जिरगा। खैबर, औरकजई, दरा आदम खेल और हसन खेल के 150 कबायली अमायदीन की शिरकत। अगला जिरगा मोहम्मदौर, बाजोड़, फिर वजीरिस्तान और आखिर में जिला कुरम में होगा। आमरीत के हर दौर में सहाफियों और सियासतदानों ने कौड़े खाए। जमहूरियत की बका के लिए सहाफियों का किरदार याद रहेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का PFUJ की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। वजीर आला ने सीनियर सहाफियों के साथ मिलकर केक काटा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खिताब में कहा जिस थरपारकर को सबसे पसमानदा इलाका कहा जाता था वही अब पूरे पाकिस्तान को पालेगा। थर के कोयले से बनी बिजली 200 साल तक एक्सपोर्ट की जा सकती है। भारत अपनी शिकस्त रहती दुनिया तक याद रखेगा। हमने इस माह को जश्न आज़ादी मार्का हक का नाम दिया। मार्का हक का जश्न मनाने का मकसद भारत की नस्लें याद रखेंगी। गवर्नर सिंध का जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीब से खिताब। कामरान टिसोरी ने कहा भारत ने हमारी शहरी आबादी पर फायरिंग की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हम बहैसियत कौम बुनियाद महसूस हैं, अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहेंगे।
वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का आगाज। तक़रीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया। मरियम नवाज कहती है मार्का हक ने आज़ादी और इसके जश्न की अहमियत बढ़ा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बात का इजाफा किया। कौम ने बहादुर अफ़वाज से मिलकर साबित किया कि आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने दिल से पाकिस्तान के उन्वान से नया नगमा जारी कर दिया। नगमे शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कुर्बानी को सुनहरी अल्फाज में सराहा गया है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाबशाह के इलाके 60 मील आमद से लाभ मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों का दौरा किया। खवातीन में घरों की असनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने बेनजीर स्कूल का संग बुनियाद रखा। आसिफा भुट्टो का कहना था खवातीन को सिर्फ घर नहीं बल्कि इज्जत, अहमियत और ताकत दी गई है। सन् में 21 लाख घरों की तामीर सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारनामा है। PIA की निजकारी के अमल में मजीद तेजी। कंपनियों के नुमाइंदे पीर से PIA हेड ऑफिस कराची का दौरा करेंगे। PIA हेड ऑफिस और इस्फहानी हैंगर में तैयारों का दौरा कराया जाएगा। एयर ब्लू और आरिफ हबीब कंसोर्शियम को तैयारों का दौरा कराया जाएगा। फौजी फर्टिलाइजर्स लकी ग्रुप कंसोर्शियम के नुमाइंदे भी दौरा करेंगे। एयर सर्विस एग्रीमेंट, रूट्स आमदनी और मुलाजमीन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। हज से महरूम रह जाने वाले आजमीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। ज़राए का कहना है प्राइवेट ऑपरेटर्स आजमीन से कोई इजाफी रकम वसूल नहीं करेंगे। आजमीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में हैं। गुज़िश्ता साल 63,000 हज कोटा इस्तेमाल न हो सका। सेनेट कमेटी ने वजारत मजहबी उमूर और प्राइवेट ऑपरेटर्स को जिम्मेदार ठहराया। तपती जमीन, नंगे पांव, गजा का मासूम बच्चा आटे का थैला मिलने पर खुशी से निहाल। गिरते पड़ते फटा हुआ थैला उठाए अपनी सारी तकलीफ भुलाए खेमे की जानिब दौड़ता रहा। गजा में लाखों लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। भूख से बेहाल फलस्तीनियों, इसराइली बमबारी जारी। इमदादी मरकज पर हमले में 13 अफराद शहीद। आज के हमलों में शोहदा की तादाद 36 हो गई। बच्चों समेत 7 अफराद भूख से दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 159 हो गई, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं। आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम तक मज़ाहमत जारी रहेगी। हमास का ऐलान। हमास ने कहा आज़ादी मिलने तक हथियार डालेंगे ना सर झुकाएंगे। मुसल्लह जद्दोजहद कौमी हकूक़ की बहाली तक जारी रहेगी और इन हकूक़ में सबसे पहला मुतालबा है अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाकर एक आज़ाद रियासत का क़याम। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात और यरग़मालियों की रिहाई पर भी डेडलॉक बरकरार। ग्रीन शर्ट्स का T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा मैच कल फ्लोरिडा में सुबह 5 बजे खेला जाएगा। शाहीनों ने पहले मुकाबले में मेजबान टीम को 14 रन से शिकस्त दी थी। 3 मैच की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान की बेटर फ्यूचर टीम ने नॉर्वे का फुटबॉल अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। ओस्लो में फाइनल मार्के में मेजबान क्लब को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातेह खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। इख्तितामी तकरीब में दिल पाकिस्तान ने तमाशाइयों का लहू गरमाया। और स्पेन में वेलेंशिया ओपन का फाइनल। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी हमजा खान मेजबान हरीफ आयकर के मद्दे मुकाबल। हमजा खान ने सेमीफाइनल में फ्रांस के जोशुआ के खिलाफ 3-2 से फतह समेटी।